Hello, good evening, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं Akram, आप देख रहे हैं sports, our continued coverage of the HBL PSL season 9. And in the Pavilion, I am joined with the four former captains of Pakistan, four outstanding individuals who served the game of cricket really well. I've got the opening batsman, part-time leg spinner, Azhar Ali. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Azhar. Wa alaikum salam, thank you. With him, another all-rounder, great all-rounder, off-spin bowling and batted at various positions for Pakistan and brought in a lot of glories for Pakistan, is Mohammad Hafeez. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Hafeez. Next up, the most successful Test captain in Pakistan Test cricket history. I've got Misbah. Good evening, assalamu alaikum, Misbah. Good evening, wa alaikum assalam. And finally, ladies and gentlemen, I've got the man himself, the legend, the legacy, the man who has given us so many great memories throughout his career and served Pakistan proudly. The swinging sultan, the sultan of swing, the kalakar, the fankar, the adakar. And of course, not to forget the president of the Karachi Kings, Wasim Akram. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Wasim. Assalamu alaikum ji, assalamu alaikum, good evening. Good to see you smiling. Yes, I always smile. When have you seen me not smiling? Yeah, but as I do understand the pressures that come with being the president of Karachi Kings. Yeah, I think, pressure भी है, depression भी है, पता नहीं क्या क्या है. वही वाला गाना आतिफ असलम का अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में. All right, folks, it is another game that has come to an end here in Rawalpindi, and this is how it went down. ये जरा मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. कराची किंग्स का मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड से. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच जीत लिया है. This is how it went down. कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड आज टॉस जीत करके उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया. कराची किंग्स को बैटिंग दी गई and Karachi Kings again had a very topsy-turvy start to their batting. But again, it was the experienced Pollard that came in to help the Kings. And then that partnership with Vince, that 50-plus runs partnership, is what gave them a somewhat competitive score of 150 for 7. Now, this is how it went down. Vince of 29 of 27, Saif for 26 of 19, Niazi 16 for 13. Mills doing well, bowled 4 overs, 3 for 34. Fahim 4 overs, 2 for 16. It was just fantastic today. Imad Wasim also wonderful, 1 for 18 in his 4 overs. And Hunain there, 1 for 36 with his 4 overs. In reply, Islamabad United completed the target in a 18.4 overs. Shadab batting that very good innings that he's played again today, 34 of 26 deliveries. Salman Agha again contributing 33 of 30. Haider Ali there coming in at the end and making a really good appearance there, 26 of 16. Hales 18 for 13, struggling. Hamza 3 for 41. He was expensive, but he did pick up 3 wickets. Muzar Rabbani 1 for 24. And then Zayed again 1 for 30. Islamabad United winning this one by 5 wickets. And this is how it went down. Zara points table पे भी नजर डाल लेते हैं. सूरत हाल जो है वो अब गंभीर हो गई है कराची किंग्स के लिए. Look how the chart is now at this time and stage. Islamabad United have climbed up straight to the number 2 spot with 9 points. Now, Multan Sultans already qualified. Islamabad United का एक मैच रहता है अभी. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 3 मैचेस रहते हैं, उनके भी 9 पॉइंट्स हैं. पेशावर ज़ल्मी के 2 मैचेस रहते हैं, उनके भी 9 पॉइंट्स हैं. कराची किंग्स के 2 मैचेस रहते हैं, उनके इस वक्त 6 पॉइंट्स हैं. Qalandars are out of the race as we all know it. They have 3 points over there. But if you look at this table very carefully, Karachi Kings can now pick up, if they win their 2 games, they pick up 4 points, they go to 10. And then we've got to see what happens to the Gladiators and Zalmi there, and they still have to play against the Kings. This is going to be very, very interesting. Every game counts for every team in this HBL PSL9. So that's how it's going down on the screen. So Wasim, as President Karachi Kings, yes, what are your first thoughts about your team's performance today? Team selection, Nawaz को पिछले I think हम हफ्ते डेढ़ से कह रहे हैं कि he is not in good form, platinum player है. उसका अभी तक इस PSL में 8 मैच हो गए हैं, 6 विकेटें हैं, 2 विकेटें हैं और 88 की एवरेज है. इकॉनमी रेट अब सिर्फ 9 का है और बैटिंग में 6 इनिंग्स में 88 रन किए हैं. स्ट्राइक रेट 125 का है. और अगर आप प्लैटिनम का प्लेयर आपको ना विकेटें दे रहा है ना आपको बैटिंग दे रहा है, आज भी आपने उसको नंबर 5 पे भेजा है बजाय कि इरफान को भेजते. उसकी जगह जो प्रॉपर बैटर है जो पूरे ओवर करता, उसने फिर अजीब सी शॉट मार के आउट हो गया. और आई सपोज ये 150 जो कर गए हैं वो तो पोलार्ड 39. जब देखें ना, जब स्कोर कार्ड आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है 30, हाईएस्ट इज़ 39.
ये विकेट में कोई डीमंस नहीं थे, कोई जादूगर नहीं थी, ये जादू नहीं था इस विकेट पे, जस्ट इट वाज अ गुड पिच, थोड़ा टर्न हो रहा है, दैट्स इट. You just had to bat and had wickets in hand तक you get to 160, 165. वो एक स्टेज पे लग रहा था कि 165, 165, पर फिर शॉटें 3, 4, 5, you know, हसन अली आया, शुएब मलिक, so experienced, everything relies on him when the spinner is on. Okay, he played that shot against Wasim के वो जो है go to shot है उसकी निकल के, but उस सिचुएशन में लगी नहीं, उसके बाद it was downhill. अगर पोलार्ड ना ये 39 ना करता तो शायद 120 भी ना होते. सो अब कराची को प्रॉब्लम है. अब अपने तो 2 मैच वो जीत गई फॉर इंस्टेंस, तो बाकी टीम अदा ही करोगे. एग्जैक्टली. ये अपने 2 जीत के 10 पे आएंगे, बाकी अगर दोनों में से 2-2 वो जीत गए, एक इस्लामाबाद जीत गया, वो चला जाएगा 13 पे, 11 पे, और बाकी चले जाएंगे 11 या 13 पे. उसके 3 मैच है कोयटा के, तो खुद ही फंसे हैं ये मुसीबत में कराची. Yeah, that has been for you, Misbah, your early thoughts on this game. Was Karachi Kings really poor today, or was Islamabad United exceptionally good? आई थिंक स्टार्ट अच्छा मिला था कराची को, उसके बाद पहले 3 ओवर्स के बाद मोमेंटम लूज़ किया. मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपको मोमेंटम मिलता है तो फिर आप उसको मोमेंटम को नहीं छोड़ना. जैसे उन्होंने मौका दिया, इमाद वसीम आए हैं, उस पर बिल्कुल चांस शुरू में फंसे हैं, उसको अलाउ किया बॉलिंग करते हैं. 4 ओवरों में उन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंस डाला, 4 ओवर में 18 रन. और उसकी वजह यही थी कि दो पावर प्ले के ओवर थे, वो इतने बिल्कुल सेफ ऐसे लग रहा था खेलने चले गए हैं. लेफ्ट बीइंग अ लेफ्ट हैंडर एट द क्रीज एट दैट टाइम. जैसे मोमेंटम ब्रेक हुआ, फिर आपके पास मोमेंटम दोबारा वापस नहीं आया. 2 विकेटें गिरी हैं, यू जस्ट गेट इन अंडर प्रेशर उस टाइम पे, और उससे फिर निकलना मुश्किल होता गया. हालांकि आज अगर इस्लामाबाद की बॉलिंग को देखें तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया कि नसीम शाह नहीं खेले. नसीम शाह के अगर ऊपर से 2 ओवर होता तो शायद वो वाला स्टार्ट भी ना मिलता जो ऊपर से मिला. बट समहाउ कहीं ना कहीं वो जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है, विंस, शान, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं कराची को. मोमेंटम नहीं मिल रहा है. एंड देन शुएब मलिक ऑल्सो कुड नॉट स्कोर रन्स टुडे. सो आई थिंक इसी वजह से ये रन्स वो 160 या 170 नहीं कर पाए. शान मसूद, हफीज कैप्टन. नाउ कैप्टन को क्या कह सकते हैं आप? यू कांट रियली ड्रॉप हिम फ्रॉम द टीम आइदर एंड ऑल एंड एवरीथिंग, बट ही इज जस्ट नॉट फायरिंग. एंड अगेन टुडे लुक्ड वेरी टेंटेटिव. ये जरा स्क्रीन पे आपके दिखाते भी हैं साथ में, बट टेक अस थ्रू व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज बैटिंग. देयर समहाउ इट लुक्स लाइक ही इज नॉट मूविंग, ही लुक्स फ्रोजन. देखें, शान की जो कामयाबी हमने PSL में देखी है वो टेक्निकल शॉट रेंज के ऊपर देखी थी. कभी भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स या इनोवेटिव शॉट्स जो हैं वो खेल के स्कोर किया हो, बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले द बॉल विद इन हिज रेंज. वो इस PSL में मिसिंग पार्ट है. इनके बॉल गैप्स में नहीं जा रहे, इनकी टाइमिंग का मसला आया हुआ है. जो भी एक बॉल खेल रहे हैं वो गैप्स में नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल ये कर रहे हैं कि इनको इनिशियल वो जो पुश चाहिए, जिसमें आते ही आपके 2-3 चौके लगे, बॉल गैप्स में जाना शुरू हो जाए, वो इनको नहीं मिल रहा. आप इसकी मोस्टली अगर स्ट्रगल देखें इस पूरे PSL के पहले 6 ओवर में, तो इनके शॉट तो लगते हैं लेकिन वो गैप्स में नहीं जा रहे. तो समवेयर आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड. और ये भी एक शॉट ऐसा है जो आपको शो करता है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं चलती. या आउट ऑफ फॉर्म अगर मैं ना कहूँ तो जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और आपके बॉल जो है गैप में नहीं जाते तो आप स्ट्रगल करते हो. आई थिंक serious concern for not only for Karachi King, only for like even for the Shan also, कि एज ए कैप्टन उन्होंने लाजमी नहीं कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो हाउ आई कैन मेक अदर पॉसिबल थिंग्स कि यार जहाँ पे कोई दूसरा कोई आके ये रोल प्ले कर सके. आई थिंक इट्स अ गुड वे दैट इफ ही कैन कम डाउन अ बिट. नंबर 3 पे भी आके खेल सकते हैं अगर विंस ने खेलना है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड क्रिकेट फ्रॉम हिम एज एन ओपनर. I'm talking about wins. James. So, अगर James can open and he can bat at number 3, a slight change might give them a boost. Might give them something जो ये अब तक missing part चल रहे हैं इनका. ये तो हम काफ़ी 2-3 मैच हो गए हैं ये बात कर रहे हैं. शान ना अटैक उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरह शायद वो उनको उस जोन से बाहर निकाले, और उनके जो आप जैसे कहते हैं टेक्निकल शॉट्स हैं वो लग नहीं रहे. तो आई थिंक कि वो हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि यार नंबर चेंज कर लें, जेम्स विंस ऊपर आ जाएं. लेकिन मसला ये है जेम्स विंस की भी वही सिचुएशन चल रही है कि 27 बॉल तक वो अंदर रहे और 29 रन्स बनाए उन्होंने. तो मतलब वो भी फंसे हुए हैं. और जब वो आउट हुए तो 3 चौके लगातार मारने के बाद उसमें भी वो काफ़ी लकी रहे, और उसके बाद वो जाके आउट हुए. 4 ओवरों में 34 रन थे
और 6 ओवर में 38 पे आपने पावर प्ले फिनिश किया है, सिर्फ एक ही विकेट गिरी है, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट श्योर अबाउट योर बैटिंग, आप बहुत ज़्यादा लो हैं इन कॉन्फिडेंस। और जो हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको सारी परफॉर्मेंस इतनी टेंटेटिव बैटिंग करने के बावजूद आप 150 कर गए। इमेजिन कि आप इवन विंस वहीं पोलार्ड के साथ खड़े रहते 3 चौके मारने के बाद, जहां ये आउट हुए हैं, यहाँ 12 रन 4 बॉलों में बन गए हैं, आपके साथ पोलार्ड खेल रहे हैं, आप एज एक्सपीरियंस प्लेयर जस्ट कैरी ऑन बैटिंग। आपको पता है पीछे हमारे पास बैटिंग ज़्यादा नहीं है, 4 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी हैं। It was a nothing shot. It was a nothing shot और आपको मिल गया यार, आप ठीक है, आप स्ट्रगल अप कर रहे हैं, लेकिन यू हैड सम सॉर्ट ऑफ अ पार्टनरशिप विद पोलार्ड और यू नो हाउ डिस्ट्रक्टिव ही इज़। तो आप थोड़ा वेट करें जब तक वो खेल रहा है, आप इनिंग्स लेकर चलें। तो ऐसे अब आप तीनों टॉप बैट्समैन रह चुके हो इंटरनेशनल क्रिकेट में। मिसबाह, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, यू वर डिस्कसिंग, मैं आपसे कर रहा था, जैसे शान है स्पिनर, उसको लग जाता है या खब्बा या ऑफ स्पिनर, तो उसकी बस एक शॉट है, मुझे पता है, तुझे पता है, ऑपोजिशन को पता है, बॉलर को पता है कि ये हटेगा, एक्स्ट्रा कवर जाएगा। तो आप ये कह रहे थे कि ये पहले ही बाहर खड़ा हो जाए, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा हमें क्रीज में, दैट वुड बी मच ईजियर, ताकि यंग बैट्समैन वगैरह में। अब जो शान की हम बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे, पहले मिसबाह को बताएगा शान करता क्या है। नॉर्मली शान मिडिल पे बैटिंग कर रहे हैं या इवन ऑफ स्टंप पे बैटिंग करते हैं, जब वो स्पिनर को खेलते हैं, यहाँ पे आप उनकी ऑफ स्टंप देख रहे होते हैं और बाद में वो डिलीवर करने आया, फिर वो पीछे हटते हैं और रूम बनाने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा जब फॉर्म में होते हैं तो ये चीज़ वर्क करती है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो होता क्या है कि आप जब मूव करते हैं हेड हिलता है, स्टिल नहीं होते, तो आपसे वो डिसीजन जो बॉल को पिक करना है या मिडिल करना है वो नहीं हो पाता और आइडिया नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मूव करने। तो आप अगर ठीक है इस तरफ आपने खेलना है या सामने खेलना है और रूम उसके लिए देख रहे हैं और आप सोचते हैं कि फॉलो करेगा तो मैं इधर जाऊंगा, तो आप पहले ही फिर नीचे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, पिच अगर सीधा है और स्पिन नहीं हो रहा और मोहम्मद वसीम बॉलिंग कर रहा है, आपको पता है कि ज़्यादातर ये एंगल से बाहर जाएगा बॉल, मैं पहले ही यहाँ खड़ा हूँ, आप एक चीज़ सोच लेते हैं कि जो बॉल इधर आएगा मैंने उसको सामने खेलना है या यहाँ खेलना है, और उसके बाद अगर ये फॉलो करेगा या स्लो बॉल करेगा तो वो एटलीस्ट मैं टांग रख के भी मारूंगा, तो मैं विकेटों वाला बॉल नहीं है, लेग बिफोर का चांस नहीं है। एटलीस्ट आपका जो हेड है वो स्टिल रहेगा, क्योंकि फॉर्म में होते हैं तो ये मूव अराउंड करना कोई इतना इशू नहीं होता, आपको आइडिया होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो सम टाइम यू हैव नो आइडिया कि आप मेरी ऑफ स्टंप किधर है, और 2 दफ़ा तो वो सीधा बॉल मिस करके उनकी ऑफ स्टंप उड़ गई। तो ये थोड़ा सा उनको देखना चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम बात करते हैं, जैसे एक इनिंग खेली मनरो ने, दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट यू कुड से, हम कई दफ़ा क्रिकेट में कहते हैं ना अगली इनिंग, कि आप रुकते हैं, टीम ने अलाउ किया, आप थोड़ा सा प्लान चेंज करते हैं, दूसरी तरफ से रन्स हो रहे हैं, आप थोड़ा लंबा खेलते हैं ताकि एटलीस्ट वो जो आपकी बॉडी है वो रिएक्ट करना शुरू हो जाए, थोड़ी सी ऑटोमेशन आ जाए आपकी शॉटों में। वो बीच में फंसे हुए हैं, वो टाइम थोड़ा सा लेते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं, देन दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम। थैंक यू मिसबाह। पहले पिछले PSL देखें, वो रिवर्स स्वीप खेलते थे, वो स्वीप खेलते थे, ठीक है, फिर निकल के भी खेल रहे होते थे। इसमें लगा कि वो सिर्फ एक ही शॉट पे रिलाई कर रहे हैं, जिस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बॉलर के पास एक ही चीज़ है बचने के लिए कि यार इससे मैंने हट के शॉट नहीं खाना। Right. All right. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, we'll talk more about this game. Stay with us. All right, welcome back to the Pavilion. I'm Akram. You're watching a Sports Hour, continued coverage of the HPL PSL9. With me in the Pavilion, I've got Azhar, Mohammad Hafeez, Misbah and the great Wasim Akram. बात हम कर रहे थे जो अभी मैच खत्म हुआ है रावलपिंडी में. It was Karachi Kings versus Islamabad United. Islamabad United winning this one. And we were talking about the Karachi Kings batting. Other than Pollard, really... Misbah, nobody delivered. What was different about Pollard's inning? How is it that Pollard was able to apply himself on this pitch and the others were not? I think जब आप रन्स कर रहे होते हैं, स्पेशली इतना एक्सपीरियंस भी है, कॉन्फिडेंस भी है पीछे, और जो स्ट्रेंथ है उनकी वो उन पे खेलते हैं। नॉर्मली उन्हें फास्ट बॉलर्स को देखा कि बॉल थोड़ा सा हो रहा है, रिस्पेक्ट दी, जैसे स्पिनर आए, ये उनकी शॉट्स हैं, जो इनके एरिया में गेंद आता है, जैसे उन्होंने पिछले मैचों में बात की, उसके लिए वो तैयार होते हैं, चाहे वो पहला बॉल ही क्यों ना हो, वो उस पर चांस लेते हैं। एंड ही इज़ सो पावरफुल। ये देखें, हल्का सा गेंद जो भी उनके करीब गिरता है वो गेंद वो छोड़ते नहीं हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं।
ये चीज़ जो है ये हमारे प्लेयर्स को सीखनी है कि डजेंट मैटर कैसे आप चल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे पूरा यकीन होना चाहिए। मेरे एरिया में अगर बॉल आएगा तो उसको मैंने कैच करना, चाहे वो पहला बॉल है, चाहे वो लेटर आपकी इनिंग में वो बॉल है। यही वजह मेरे ख्याल में वो रन्स कर रहे हैं, क्लैरिटी है, अपने आप को बैक करते हैं। और आज भी मेरे ख्याल में वसीम भाई ने सही बात की, उनके 39 रन थे, वरना ये तो शायद 130 भी ना होता। वरना तो और इस इनके कितने 8 मैच हो गए ना कराची किंग्स के, सिर्फ 2 50 हैं। एक शुएब मलिक ने किया था शुरू में, एक पोलार्ड ने किया था। सो इमेजिन दैट्स where the batting war started for them. What's going on with Shoaib Malik, Hafeez? What do you think is going on with him? Because एक 50 जिसकी बात कर रहे हैं अभी वसीम, उन्होंने एक 50 किया था वो वाला। We've been counting on his experience. बीच में उन्होंने कुछ stability वाले roles play किए हैं. But I mean, it's like we're missing that energy, that vibe that comes from Shoaib Malik. You know, he comes in, he can hit the ball, he can take the fast singles, this and that. It's somehow there is something missing. देखिए मलिक की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है। करेक्ट। क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं एज ए मिडिल ऑर्डर, फास्ट बॉलर को पीछे हट के कट शॉट अच्छा खेलते हैं, अपनी उनके एरियाज उन्हें पक्के किए हैं। कोई मसला नहीं है, मुझे लगता है उनकी फिटनेस का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा वो अपने आप को फर्दर टाइम दे। लाइक 2 मरतबा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को मारते हुए आउट हुए। एक मरतबा वो आउट हुए थे इस इमाद के साथ, और एक मरतबा एक और मैच था ये मिडॉन पे आउट हुए थे, लेकिन कुछ दिल से। हालांकि ये वो बॉलर्स हैं जिनको ये बहुत अच्छा खेलते हैं, और इनके ये यूजिंग हिज फीट एंड गोइंग डाउन स्ट्रेट टुवर्ड्स द मिड ऑफ एंड मिडॉन, ये बहुत इनका पक्का शॉट है। लेकिन आज मुझे लगता है थोड़ा पिच को मिसरीड किया। हालांकि इससे एक बॉल पहले इन्होंने खुद जज किया कि देयर इज अ लिटिल बिट टर्न, देन द नेक्स्ट बॉल ही वेंट आफ्टर द बॉलर एंड गिवन हिज विकेट अवे आई बिलीव। मुझे ये लगता है कि इनको थोड़ा सा फर्दर रोटेशन जो इनकी बेस्ट वे है टू स्कोर रन्स, उसके ऊपर फर्दर थोड़ा सा लेके जाना चाहिए। वंस द बॉल इज गोइंग इनटू द गैप्स, ही स्टार्ट मूविंग हिज लेग्स, then you can play a shot, but I think थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। Right, so वही मसला आ जाता है ना कि जब विंस साहब के साथ खेल रहे हैं, you think that he will be an aggressor, और जो एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ होगा मैं अपना एंकर करूँगा, लेकिन वो वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। फिर आपका जो एंकर हैं जिन्होंने इनिंग को आगे लेके बढ़ना है, उनके दिमाग में ये आता है कि यार आई हैव टू डू समथिंग। सबसे बड़ा जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो पावर प्ले। पावर प्ले में आप देखें, हमने कितनी दफ़ा स्टैट भी दिखाया है कि पावर प्ले में विकेटें भी गिर रही हैं, रन्स भी नहीं हो रहे कराची के। तो मिडिल ऑर्डर में जब चौथे नंबर पे जो भी प्लेयर आता है उसको मोमेंटम नहीं मिलता। अब आप जब मोमेंटम उसी में खेलेंगे तो आपका 150 नहीं होता। उसको जब शिफ्ट करने जाते हैं तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि यार एक विकेट और जा सकती है आपकी, और यही हो रहा है। Yeah. All right, with that, let's now focus on the Islamabad United batting. Problems, Colin Munro, off color, Alex Hales, off color. बिल्कुल ही शान मसूद टाइप का माहौल बना हुआ है उधर भी। Colin Munro ने पिछले मैच में स्कोर किया है जी, लेकिन वो फिर आज बड़े कंफ्यूज लग रहे थे। Alex Hales to me looks like he's checked out. He's just physically here, not mentally. Right. I mean, उनका तीसरा consecutive failure है, although he's one of the most experienced players in T20 format. That's what he does for living. And then you come down Agha Salman's side of well, almost run a ball. But ये तो दिखा रहे हैं Hales को देख रहे हैं आप। Alex Hales को, he's not looking balanced and everything, but he's a dangerous player. एक आधा मैच की बात है इसकी, but coming back to Agha Salman, he started off well, hit a 6, 33 भी कर गया, और फिर क्या शॉट मारी है। अब ये लड़के कब सीखेंगे ये? अब आगा सलमान पाकिस्तान टीम के साथ है ना, जी खत्म करके आओ, राना बॉल चाहिए, 33 पे तुम हो, और आपने बॉलर भी सबसे मुश्किल पिक किया जिसको हिट मारनी है, ब्लेसिंग मज़ारबानी। भाई तू बॉलर ही लब ले, कोई दूसरे बॉलर चला जा, अगले ओवर अटैक कर ले कि आई गो 55 नॉट आउट जाता हूँ मैं, अब आराम से बारी लेता हूँ। उससे पहले नवाज के ओवर में और ऑलमोस्ट राना बॉल पे आया। आई थिंक नहीं करना चाहिए था। प्रेशर गेम्स में जब मस्ट विन गेम होती है, जैसे एक आधी विकेट आप ऐसी देते हैं, और सेट बैट्समैन अगर ऐसी कोई भी गलती करता है ना, तो मैंने हमेशा देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में या डोमेस्टिक हो, वो आपको कहीं ना कहीं फिर पे करना पड़ता है। और आज भी एक स्टेज आ गई थी कि शादाब सेंसिबल खेल गए, शादाब उनको थोड़ा सा और वहाँ पे आके, और फ़हीम ने और हैदर ने एंड पे मेरे ख्याल में बहुत अच्छा। आई थिंक जब हैदर वगैरह आए तब तक लिटरली बट स्टिल जैसे विकेटें गिरी थी, एक विकेट और गिरती तो वसीम भाई एनीथिंग कैन हैपन। नहीं मगर उन्होंने भी क्या ऐसी भी विकेट नहीं लेनी। आपसे करना चाहता हूँ, अगर जी जरूर। आपने एक बड़ा अच्छा फ्रेज यूज़ किया और मैं उसका थोड़ा सा मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो आपने बोला कि एलेक्स हेल्स इज़
physically there, not mentally. Yeah. What does it mean? Like how you will It describe means in between he went to Dubai as well. I've been told for 3-4 days. He took some time off. I can understand he's away from home from last 4 months, but that's not our problem, is it? Yeah. That's not Karachi Kings' problem. Islamabad United's problem. Yeah, it's like the same. Like Azhar Ali is here, but he's not here. Yeah, mentally he's not here. He's on the show, but he's not in the show. Yeah, coming back to that point, अब problem यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी है. आपने वो डैरन सैमी का शुरू में ट्वीट भी दिखा था कि how difficult it is to organize a golf. Yeah. अब यहाँ पे बाहर भी नहीं निकल सकते. ये security threat है. I'm all for it. That's fine with me. But when we call these foreign players, we make sure we organize some entertainment for these guys. Their entertainment care to go out, play golf, maybe a dinner once in a while outside the hotel मेरा itself. ख्याल है वसीम भाई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा कॉशियस किस्म We की can't afford that risk. Yeah. We've had a bad experience in our history, so we don't want to उसको take that गुजरे हुए risk. I यार think. 10-12 साल गुजर गए लाइफ But को ठीक है। कहीं हम आगे भी आसान करें. Yeah, that's बिल्कुल, what I I mean, agree कि with you. थोड़ा सा प्लान पहले से करना पड़ेगा. अगले साल पता है, अभी से पता जिंदगी को आसान है करें कि players. PSL उस डेट्स पे नहीं हो सकती जो yeah, इस डेट्स yeah. पे हो रही है बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी की वो डेट्स हैं. और चैंपियंस ट्रॉफी भी हो सकती है पाकिस्तान में या नहीं. There are too आज many मैं पढ़ रहा questions. था नए चेयरमैन साहब ने डिसाइड किया है कि फैसलाबाद एंड सियालकोट आई थिंक एक स्टेडियम आई होप तो फेक न्यूज़ भी बड़ी आती है ना कि वो स्टेडियम PCB ले रहा है सबको रेनोवेट कर रहा है. I hope so, sir, but we have to confirm that with PCB. I think और आपकी बात सही है कि आजकल फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा सर्कुलेट हो जाती है. It's very difficult to filter that out. ये आगा सलमान की इनिंग्स चलाते हैं आपके सामने. And why we're talking about Agha Salman is because he's with the Pakistan team, and in this coming T20 World Cup, Agha Salman has a very important role to play, and we're hoping that he'll take that middle order that we are so seeking somebody to play. Misbah, take us through. I mean, he looks good. He's got the shots. He plays well. But what about the choices that we are making as batsmen right now? आई थिंक डिफ़िकल्ट कंडीशन थी. बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी. नया बॉल सबको पता है. और वसीम भाई ने जैसे बात की वो यही कह रहे थे एलेक्स हेल्स और मनरो की बात कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं. जब उनको पता है कि यार पल्ले नहीं पड़ रहा गेम, द वे इट्स मूविंग ऑफ द सेम, स्विंग भी हो रहा है और 2-2 ओवर आपके मेन बॉलर कर रहे हैं, इनको सी ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं है. बाद में रन जहाँ पे हमने देखा पिंडी में हो जाते हैं. अब आगा को वो मुश्किल टाइम आके और शादाब को झेलना पड़ा है. हालांकि अगर वो ऊपर से खेल जाते तो इनके लिए आसानी होती. दे डिड इट वेल. जैसे भी था उन्होंने वो टाइम पार्टनरशिप लगाई, बट एट द एंड फिर वही चीज़ कि आप फिर थ्रो ना करें. इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप. इंडिविजुअल ग्रोथ होती है अगर वो यहाँ से इसको इंडिविजुअल ग्रोथ आपको एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर कोच नहीं देगा. वो आपने खुद एग्जैक्टली. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एज अ बैट्समैन या एज अ क्रिकेटर के जब तक आखिरी रन आप नहीं कर लेते, एज अ बैट्समैन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई मैं ही हूँ, पीछे कोई नहीं है, मैं सेट हूँ तो मैंने ही करके जाना है. अच्छा, अब आ जाते हैं शादाब खान की बैटिंग के ऊपर. शादाब ने आज ये दिखाया जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं. ही अंडरस्टूड कि अब रन अ बॉल की रिक्वायरमेंट है अज़हर, एंड ही वाज प्लेइंग द गैप्स, ही वाज टेकिंग इट इजी. वो एक अच्छा गेंद पड़ गया उनको, बहुत अच्छा गेंद था. अज़हर इज हैविंग अ वेरी गुड टूर्नामेंट. यस, बेहतरीन टूर्नामेंट जा रहा है. बॉलिंग स्पेशली जिस तरीके से बॉलिंग अच्छी होना शुरू हुई. बैटिंग तो उन्होंने स्टार्ट से टूर्नामेंट से अच्छी की. बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस वैसे भी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड. आज खैर उन्होंने 2 ओवरों में 22 रन दिए. आज को एक्सेप्शन पोलार्ड सामने खड़े हैं वहाँ पे, छक्के मार दिए पोलार्ड सामने खड़े तो ही कैन टेक ऑन एनी स्पिनर. बट अगर वो जगह पे गेंद गिर जाते तो शायद वो ले जाते हैं उनको. लेकिन बैटिंग पे आते हैं वापस. ही इज़ बीन एक्सेप्शनल इन दिस टूर्नामेंट. नंबर्स 1-2 दफ़ा चेंज किए हैं विच वाज आई थिंक नॉट नीडेड. He should keep batting at number 4. इसकी एवरेज ऑलमोस्ट 38 की है so far. 224 runs in this PSL so far and under pressure too. So that's a good sign to Pakistan and for Islamabad. Also जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जब अच्छा टाइम आया हो ना उसको कैश करें. क्योंकि ये बार अच्छा टाइम आप उनसे पूछें इस टूर्नामेंट में, शान से पूछें भाई नहीं हो रहे ना रन, तो आप समझ नहीं आ रही. वी ऑल नो ही इज़ केपेबल. बट जब क्रिकेट में आपके पास आपको टाइम ऐसा आता है ना, फिर आपको अगला रन करना भी मसला लग रहा होता है. आई थिंक उसके लिए भी आगा के लिए भी यही है कि अभी आप रन्स बना रहे हैं. सो मेक श्योर यू टर्न योर 30s into 50s एंड योर 50s into 80s. ये बॉल देखें, अभी ये अच्छा बॉल हो गया, दैट इज़ फाइन. यू नो दैट वाज अ गुड बॉल, बट ही वाज आज पता लग रहा था कि ही वाज टेकिंग इट डीप एंड ही वांटेड टू फिनिश द गेम. उसकी इनिंग थी मेरे ख्याल में जो आज लेगी इस्लामाबाद को. और रन आउट का एक चांस था
बहुत क्रूशियल चांस जो शान मसूद ने मिस फिर किया। सारी बातें एक जगह मैंने हुआ है, दसो कराची किंग्स किਵੇਂ पहुंचेगा कितने कराची वापस आप मेक श्योर करेंगे अगली 2 मैचों वो में आगे जे। हफीज जो है ना कराची ना हाँ, एक पहली गलती है मेक श्योर करो कि मैं कराची ना मलना। नहीं, लेकिन उस बिल्ली का क्या करना है, जब जब वो आती है तो कराची हार जाती है। मुझे पता नहीं कल बिल्ली दे ना पाओ, बली दे दी है। मेरी बात सुनो, एक बड़ा आसान तरीका है, जो दूसरी टीमें नहीं वेट मुझे जो दूसरी टीमें जिनको हारना चाहिए, वी शुड बी बायस, जिनको हारना चाहिए कराची के लिए वो आपने मांगनी है, और जब कराची का मैच हो आपने कराची नहीं मांगनी। जी क्या होगा, अगले 2 मैचों में कराची की जो अपोजिशन टीम होगी वो मैं लूंगा। चलो डील डील होगी। नाउ कराची हैव अ चांस। ये बहुत बड़ा डिलेमा होने वाला है। कराची हैव एन आउटसाइड चांस नाउ। बहुत ही बड़ा डिलेमा है ये। बाय माय प्रेडिक्शन रिकॉर्ड बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जनाब, मीर हमजा की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। आज उन्होंने 3 विकेट ली हैं। ही वाज एक्सपेंसिव यार की गल साढ़े सर ਤੁਹਾਡਾ बॉलर हैगा। आई नो प्रेसिडेंट साहब नाराज हो गए। चलिए, he bowled well, he was expensive, he got a few wayward deliveries that got taken for runs, but some deliveries that he bowled, No, he bowled well. His experience, जो पहला गेंद उसने फहीम अशरफ किया और छिक्का खाया आके, उसने वो कमाल किया उसने, बट ओवरऑल हिज एक्सपीरियंस ठीक है। हमें पता है इज नॉट पेस नहीं है, बट स्विंग करता है, अच्छे एरियाज में मारता है, स्लो बॉल अच्छी है, लेंथ को अच्छा खींचता है, देखिए स्विंग भी कर रहा है। सो या गुड एरियाज ही बोल्ड दैट। ही वाज अनलकी, इसको शुरू में विकेट मिलनी चाहिए थी, पर ही एंडेड अप 3 विकेट्स। He got Alex Sales eventually, then he got Shadab Khan on a beauty. That was the best one. He was unlucky. He was really unlucky with the new ball. Yeah, he was very unlucky. जब बॉलर अनलकी हो तो उसे क्या करना चाहिए मिसबा? किलो कड़ाई खानी चाहिए। नहीं कुछ नहीं करना मिसबा, सर। you moaned a lot. काले today, बकरे man. का सदका। गुड स्लो बॉल। अब देखना ये शॉट भी कमाल मारी है उसने। That was a very good ball, especially जो सिचुएशन थी and everything. Great जब delivery. अनलकी हो तो टांग से वाइड बॉल के 5 करा देने चाहिए। All right, folks, we're going to take a break at the Pavilion. When we come back, there are some packages and then our favorite segment, #AskThePavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. I'm Akram. You're watching Ace Sports. With me in the Pavilion, I've got 4 fantastic former captains of Pakistan. I have got Azhar Ali, Mohammad Hafeez, Misbah and the great Wasim Akram. #AskThePavilion का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल राना हमजा की तरफ से। आपका एक हैंडल है राना हमजा _10. My question is for Hafeez भाई. Where do you think Lahore went wrong this year? काफ़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो उनकी बैटिंग ने सपोर्ट नहीं किया, बैटिंग ऑर्डर के जो नंबर शफल होते रहे उसने काफ़ी, हमें लगा यहाँ बैठ के कि वो उनके लिए मुश्किलात का सबब बनी। फास्ट बॉलिंग क्लिक नहीं कर सकी, 3 फास्ट बॉलर जिसकी वजह से मैचेस जीत रहे थे, शाहीन, हारिस और जमान, दे वर नॉट ऑन फायर। तो ये मुझे लगता है मेजर रीज़न थी इनके इस सीज़न के फेलियर में। मोहम्मद हादी खान आपका सवाल है। मोहम्मद हादी खान आपका, सॉरी माय अपॉलॉजीज, मोहम्मद हादी खान आपका एक्स हैंडल है मोहम्मद हादी Khan, and your question is, my question is to Azhar Ali about today's match. When Islamabad United needed 24 of 24, why didn't the captain, Karachi Kings, put the fielders in the inner circle for a wicket to create more pressure? And lots of love from Kashmir. देखिए, ज़रूर करने चाहिए थे, लेकिन आई थिंक जो स्पिनर है स्पेशली वो उतना कंट्रोल दे नहीं रहे थे कप्तान को कॉन्फिडेंस से। फास्ट बॉलर के ऊपर ज़रूर उनको लाना चाहिए था। मेरे ख्याल में चांस लेना चाहिए। इसमें आप विकेट नहीं लेंगे तो आप मैच नहीं जीतेंगे। अगर आप वो उनके बैट्समैन पूरे ओवर खेल जाते तो ही इज़ राइट कि उनको थोड़ा सा चांस लेना पड़ता है ऐसे कप्तान को ऐसी सिचुएशंस में। और जनाब मोहम्मद सरोश आलम आपका एक्स हैंडल है MS_आलम77 और आपका सवाल है वसीम अकरम। आप बताएं, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन फ्रीज is Shan Masood having that Imran Tahir is sitting out and Nawaz keeps playing? Also, what happened to Usman Qadir and Suhail Tanveer? Sir, क्या नाम बताया था? मोहम्मद सरोश आलम। सरोश, आप लगते तो हैं कि क्रिकेट का पता है आपको। क्वेश्चन जो स्टार्ट था बड़ा ज़बरदस्त किया था, एंड चाके गंद पाता है। सुहेल तनवीर को रिटायर हुए 2-3 साल हो गए भाई, उसको क्या करना है बुला के अब? नहीं, he meant कि वो कर क्या रहे हैं? What happened to them? I think he's a selector right now. Junior selector and Usman Qadir is not. Usman Qadir is one of the teams. कोयटा के साथ है, वो खिलाएंगे। और बात आ गई नवाज की। नवाज डोमेस्टिक प्लेयर है, इमरान ताहिर ओवरसीज प्लेयर है।
तो फिर उसके लिए पूरा रीशफल करना पड़ता, किसी विंस को ड्रॉप करना पड़ता, या टिम को ड्रॉप करना पड़ता, या किसी पोलार्ड को ड्रॉप करना पड़ता, या ब्लेसिंग को ड्रॉप करना पड़ता। तो यह इट्स नॉट दैट इजी। बड़ा वहाँ बैठ के टीवी के आगे बैठ के देख के ये प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा, नॉट रियलाइजिंग कि उसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है, किसको ड्रॉप करना है, किसको पिक करना है। 4 ओवरसीज खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा खेल नहीं सकते। सो या इट्स नॉट दैट easy pick playing 11. साद खान आपका एक चैनल है साद खान अलीजई, आपका सवाल है, माय क्वेश्चन फॉर द एक्सपर्ट इज व्हाट्स द बिगेस्ट थिंग यू वुड हैव loved to know at the start of your career in terms of bowling or batting that you learned after playing cricket for such a long time? If you could all share your thoughts. वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि आप की ख्वाहिश है कि आपको बिल्कुल आपके करियर के शुरू में पता होती बॉलिंग या बैटिंग में, जो आपको बहुत बाद में जाके पता चली? कॉमन सेंस। वसीम अकरम से कॉमन सेंस। मिसबाह हक? आई थिंक बेसिक्स ऑफ द गेम। मैं मेरे उसमें तो बहुत लेट जाके मैं पाकिस्तान खेलने के बाद जो है बेसिक्स ऑफ द गेम मुझे थोड़ी बहुत मैंने सीखी। उससे पहले मैं टेप बॉल से आया था तो मुझे इतना को पता नहीं था। स्कोरिंग रन्स ओके फाइन, बट जो हम हमेशा बात करते हैं बेसिक्स की, वो बहुत लेट जाके पता चली। For you, Hafeez? Technical adjustment, tactical growth, and obviously raising your fitness level up to the international level always. All right, fair enough. And for you, Azhar? I think again मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जब आपके कंट्रोल में चीज़ें होती हैं ना, जो आप बेस्ट उस दिन कर सकते हैं, स्टेइंग इन प्रेजेंट। वो जो स्टेइंग इन प्रेजेंट लफ्ज़ जो है ना, वो बड़ा लेट समझ में आया। Right. तो मैं बहुत ज़्यादा समटाइम आप बहुत अहेड सोचते हैं या पिछली चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो स्टेइंग इन प्रेजेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी कि आप अपने जो प्रेजेंट है इसमें मौजूद हैं। हाँ, इसमें मौजूद हो, यू विन दैट प्रेजेंट मोमेंट रादर देन विनिंग फर्दर डाउन। और यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि पेविलियन के दौरान में प्रेजेंट मोमेंट में कि प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट में ना करें। ये भी ना ज़्यादा। मोहम्मद मोइन, आपका सवाल है, आपका एक चैनल है MMob500. Would it be prudent for Pakistan team to field an 11 at the upcoming T20 World Cup without a left arm spinner? They could possibly go in with 2 leg break and 2 part-time off spinners as things are lining up. Thoughts? 2 part-time off spinners, एक तो नहीं पार्ट टाइम नहीं, 2 ऑफ स्पिनर्स 2 लेग स्पिनर्स। कहाँ से लाएंगे ऑफ स्पिनर भाई? I think he is talking about Iftikhar and Salman. Iftikhar and Salman, if he's in the squad, part-time, yes, sure, and then two leg spinners. जी। एक तो शादाब तो है, and And then Usama Mir. उसामा मीर। He's saying कि लेफ्ट हैंड को कुर्बान करके, which I think is referring to Nawaz. I think it's not a bad idea, but वेस्ट इंडीज में आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए। वहाँ पे ग्रिप मिलता है, वहाँ पे जो तेज मारता है, जैसे वो लड़का उस दिन खेला है पेशावर से, यंग लड़का मेहरान मुमताज, उस पेस से जो मार के टर्न करता है वो वहाँ पे तंग करेगा मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज की पिच। आई थिंक आइडियली आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए, बट मेरा ये ख्याल है कि आपको क्वालिटी पे जाना चाहिए। अगर लेग स्पिनर दोनों आपके टॉप क्वालिटी हैं, सबसे बेहतर बॉलर हैं, यू शुड गो विद देम। जैसे अबरार है और साथ उसके वन ऑफ द लेग स्पिनर्स, अगर वो आपके बेस्ट बॉलर हैं, यू शुड बी गोइंग विद देम। जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जो आपको लगता है बेस्ट है उनको खेलना चाहिए। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अब्बास बाबर, जो ब्रसल से शो देखते हैं रेगुलर, वो कह रहे हैं, थैंक यू अब्बास बाबर, और आपका हैंडल मैं नहीं बता रहा बिकॉज बड़ा मुश्किल सा है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लेजेंड्स इंक्लूडिंग फ़ख्र आलम, थैंक यू, स्पेशली टू द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ कराची किंग्स। यार ऑनररी नहीं है, बाकी एक्चुअल प्रेसिडेंट है भाई। अब्बास भाई ऐसे ही ना आप वो करें, भाई हमारे पक्के प्रेसिडेंट है। यार क्या बात कर रहे हैं, ऑनररी एम ही है हम तो। व्हाट इज योर फेवरेट इनिंग स्पेल बाय अ पाकिस्तानी प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? Watching daily from Brussels, great work Fakhr bhai. Thank you brother. What is your favorite inning spell by Pakistani player? अभी की बात कर रहे हो बास, मेरे दौर की बात कर रहे हो, किसी भी टाइम सर फेवरेट, all time favorite. Yeah, I've been with cricket for 40 years, 2 decades. But there must be one that you cherish the most. Maybe your own innings, Skip. Maybe the one where you were told just to take a single, but you decided to hit Wave Richards for a 6. Maybe that. Of course, Test cricket में पहला 100. देखो मैं नंबर 11 का बैट्समैन आया था पाकिस्तान टीम में। And to have a century. Even under 19 पैको भी खेला हूँ तो 11 में बैटिंग करते थे। तो वहाँ से जब सीखा, थोड़ा मेहनत की, काउंटी में उन्होंने मुझे 8-9 पे भेजना शुरू किया, 9 पे फिर 8 पे। मैंने पहला जो लैंकाशायर से मैच खेला 88 में, जो होम पहला मैच था, पहला नॉटिंघम था, आई थिंक दूसरा या तीसरा
ओल्ड ट्रैफर्ड में था, उसमें मैंने पहला 100 फर्स्ट क्लास वहाँ किया, विक मार्क्स एंड ऑल दीज प्लेयर्स समरसेट के खिलाफ किया था, आई रिमेंबर। और पहला टेस्ट क्रिकेट 100 इनिंग्स की अगर अपनी बात करूँ तो वो आई थिंक चाइल्ड चेरिश द मोस्ट। Misbah, for you, yours or somebody else's that you think was a very special innings? बड़ा मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल है। सबका तो मुश्किल है, अपना बता सकता हूँ, लॉर्ड्स सेंचुरी नोट्स। For you, Hafeez? चैंपियंस ट्रॉफी 50 जो मैंने Oh yeah, that was very important. For you? 141 not out at Southampton test match. Amazing. अभी recent. वो जो Wonderful. during COVID वो mentally challenge और Yeah. it was very tough. Yep. Tough innings for me. Awesome. 194, Saeed Anwar, ODI. That was what an innings that was, Kim. Absolutely. By Saeed Anwar. You would remember that, recall that. Just a very special one. All right, let's take some more questions. ये आपने पढ़ लिया बाज बाबर के बहुत सारे सवाल आ गए। उज़ैर मुगल पूछ रहे हैं, don't you think Karachi Kings should use Hassan Ali as a new ball operator in Pindi especially? अब पिंडी के तो मैचेस खत्म हो गए, but do you think? इस साल जरा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ पिंडी के मैचेस खत्म हो गए ने। जी। Any? Okay, Asad का सवाल है 969, Asad 969. When Professor is going to buy his own franchise in PSL, any chance of future? हाँ जी, दसो। Not interested. आपने ली नहीं थी? No. अच्छा। हाँ, हमें बताया भी नहीं। साकिब जमाल SJ 2022 आपका सवाल है, सलाम पैनल, great show, watch it regularly from Los Angeles. Question for all the panel, especially Wasim bhai, you. Now that more than half of PSL tournament is over, can you all pick your team of 15 for the World T20? And I got my pick, but want to hear from the experts. I think. क्या नाम बताया था? साकिब जमाल। साकिब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? साकिब, इट्स डिफिकल्ट टू पिक 15 राइट नाउ बिकॉज एक तो यहाँ रात के 1 बजे हुए हैं, मैं अपने आप ਨੂੰ पिक करना बड़ी गल है, 15 कितों पिक करांगा, बट आई सपोज कमिंग बैक टू इट, वो बंदा घंटा 2 चाहिए टू सिट डाउन एंड प्लान के कौन से 15 जाने चाहिए। वैसे भी हमारे पास इस काम के लिए लोग मौजूद हैं, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान मौजूद है यार, वो सब सेलेक्टर ने, वो जो तू कहता है जो जर्नलिस्ट हैं हमारे कुछ जो जिनको सब कुछ पता होता है अपेरेंटली। राइट। जीरक 385 आपका सवाल है पूरे पैनल से। जीरक, आप पूछ रहे हैं कि आई हर्ड योर पैनल स्पीक मल्टीपल टाइम्स अबाउट कैप्टनसी इश्यूज थ्रू आउट दिस PSL. आई वुड लाइक टू आस्क द 4 कैप्टन्स इन द Pavilion, इज देयर एनी मेमोरी ऑफ अ मैच वेयर दे रियली फंबल्ड एज अ कैप्टन? वुड दे लाइक टू शेयर as a captain where you made a big mess? हम तो यहाँ पे कप्तानों की बात कर रहे हैं ना कि गलत ओवर दे दिया। Mistake in what sense? You As a captain ना हो जाता है, मैंने गलत बंदे को ओवर दे दिया, गलत बैटिंग ऑर्डर कर दिया। बड़ी दफा हुआ होगा। बट कोई एक जो मेमोरेबल जो बड़ा हर्ट करता है उसके यार Not really. डिसीजन जो टॉस वॉस के होते हैं वो पूरी सीनियर्स के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं, मिल के होते हैं, ये कोई एक बंदा डिसीजन नहीं करता। मैनेजर होता है, कोच होता है, सीनियर वाइस कैप्टन होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जनरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। When you're captaining in the ground, आपने कहा कि अच्छा इधर से ओवर उसको बजाय देने किसी और को दे दिया, फिर रियलाइज किया कि फ्रांक का ओवर पड़ा होता है। किया होगा, डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली किया होगा, बट यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू मूव ऑन। ऑलराइट, फॉर यू मिसबा? बड़ी दफ़ा कप्तानी में तो आप बड़ी दफ़ा ऐसे होता है। मुझे एक मैच याद है कि जिसमें बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगता है, वो सीरीज़ भी चली गई थी हमारी अगेंस्ट श्रीलंका, अज्जू ने बड़े रन्स किए थे। सईद का एक मैच थोड़ा सा उसकी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, तो अगला मैच थोड़ा सा पिच भी स्लो था, वो इतना अच्छा खेलते भी नहीं थे, बट उसकी थोड़ी सी फॉर्म ख़राब थी, हमने उसको नहीं खिलाया वो मैच, एंड वी जस्ट लॉस्ट द गेम बिकॉज ऑफ दैट वन स्पिनर शॉट। सईद उस टाइम पे आई मीन वो मैच के दौरान हमें हर गेंद पे हर ओवर में तकलीफ हो रही थी कि यार ये हमने क्या किया। बैड डिसीजन एज अ कैप्टन? मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है इस तरह ये बात करना कि फ़लाँ एक डिसीजन मेरे खिलाफ चला गया या टीम को नुकसान पहुंचा। आप बहुत सी, जैसे वसीम भाई बात कर रहे हैं कि आप गलतियां कर जाते हैं और ये पार्ट ऑफ द गेम है एज ए कैप्टन, क्योंकि आपने ऑन द स्पॉट फैसला लेना होता है, लेकिन यू लर्न फ्रॉम दैट। आई थिंक कि उनका मकसद तो सवाल पूछने का शायद ये है कि हिस्टोरिकल रेफरेंस के वो हम जब करते हैं तो देखें सब कप्तानों से, ये नहीं कि जो कप्तान अभी हम बैठ के बात करें हमसे गलती नहीं, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। और जो मुझे याद है कि हम जो टेस्ट मैच मैनचेस्टर में हारे थे, उसमें आई थिंक कि जो बटलर को थोड़ी सी हमने फील्ड ज़्यादा खोल दी थी कि हम दूसरी तरफ से अटैक करके आउट कर देंगे। वो बटलर तो नहीं मार सका, दूसरे में जो है ना करके चले गए। तो आई थिंक कि बटलर की विकेट हम थोड़ा सा अगर रेस्ट थोड़ी देर और ले लेते, अगर हमें वहाँ मिल जाती तो हम वो मैच है जीत जाते। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर शेयरिंग दैट। विद दैट वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक हियर ऑन द Pavilion. See you on the other side.
Welcome back to the Pavilion. I'm Akram. आप देख रहे हैं sports. Our continued coverage of HPL PSL9 with me in the studio. I've got 4 former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafeez, Misbah and the great Wasim Akram. और जनाब जरा नजर डाल लेते हैं लीडर बोर्ड के ऊपर. You know there's a competition going on between our 4 experts. ये हर मैच से पहले मैच को predict करते हैं. Look at that. Misbah now breaking away from the pack. 16 points. Number 1 position. Azhar Ali right behind him with 13. Wasim Akram behind Azhar Ali with 11. And Mohammad Hafeez sticking to his guns at number 9. मैंने तो बता दिया. नंबर 9 लास्ट नंबर पे Actually 9 points है. मैं नंबर 9 कह रहा 9 पॉइंट इतने दिनों से कि नंबर 9 ही हो गया. नंबर 9 ही लग रहा है ना. मैं क्या कर सकता हूँ. ये सूरत हाल है. कोई नहीं, आपका कसूर नहीं है इसमें लाहौर कलंदर्स ने आपको और नहीं मैं आपकी आप टीम ने आपको डुबोया है. कराची किंग्स भी यही कह रही है. वही मैं कह रहा हूँ. आज तो बल्कि कराची किंग्स भी एहतजाज कर रही है कि आज उनको आपने डुबोया, उनको चूज किया था. खुद तो डूबे हो सनम, यारों को भी ले डूबेंगे. हमको भी जिम्मे तेरी मर्जी जनाब. ऑलराइट फोक्स, कल के मैच के ऊपर नजर डाल लेते हैं. कल एक और मुकाबला है राइट हियर इन दी एचपीएल PSL9. ये मैच नंबर 25 है रावलपिंडी से पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. Both these teams are also in the hunt for that position to qualify. Those points are very, very crucial. This is going to be a very interesting contest. कल शाम 7 बजे आपके लिए बराह रास्त मैसेज आया हफीज के लिए. कल दोनों टीमों के कप्तानों ने कहा साड़ी टीम ना मंगना प्लीज. कोई ऐसी ऑप्शन है जो बिंदर कहे नहीं मैं नहीं, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है. एक ना एक वो लेना पड़ेगा. हाँ, मैं हफीज आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि आप दोनों टीमों से रब्ता करें और उनको कहें जे तुम जितना चाहते हो तो मेरे नाल गल करो. आई विल नॉट पिक यू अदरवाइज यू आर डन बेसिकली. ऑलराइट folks, with that I think we're going to call it an evening. We'll be back here 5 o'clock and with the pre-match discussion. So we'll see you right here. Thank you Azhar, thank you Hafeez, thank you Misbah, thank you Skip. You deserve a rest. I know it's been a heavy day for you as president of Karachi. Yesterday was longer and it was a long day yesterday. And but yesterday didn't feel longer because you won yesterday, but Karachi Kings won today. Today it is feeling longer because you are not, because Karachi Kings performance. All right, get on with it. चिच को चिच. I know. I'm just, I know it'll be a difficult night for you to sleep as Karachi Kings president, but tomorrow morning you can wake up knowing this, that tomorrow Karachi Kings cannot lose because tomorrow they're not playing. Sure. Also, Twadi Billi, as Misbah has named your cat, Twadi Billi, is missing in action somewhere here on the set. We found out that it's actually given kittens here as well somewhere. Say Twadi Billi is Twadi Billi's. Really? We got to discover more on that. Studio में चिड़िया कहाँ रहे? By just looking at the pavilion, चिड़िया कहाँ आ रही है? You asked for it. All right, folks. With that, thank you very much. Good night to all of you. Good night to all of you. Have a good rest. We'll be back here in the studios tomorrow at 5 o'clock. Join us then for more action of the HBL PSL 9. And with that, it bit Gulkan. Good night. हाथी